So first question was comment on revolt of 1857, a Sepoy mutiny और first war of independence. तो रुशाली आपने लिखा है इस पे? हाँ, मैंने ट्राई किया है। ठीक है. ठीक है, मैं स्टार्ट करती हूँ। तो स्ट्रक्चर ये है कि पहले इंट्रोडक्शन में दिया है कि जैसे प्लासी में ये शुरू हुआ था उनका acquiring political power in India. It was basically a simmering discontent जो कि मैनिफेस्ट हुआ था रिवोल्ट ऑफ 1857 में। इसमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स है। तो पहले ऐसा पर्सपेक्टिव पे बोला है कि सिपोय म्यूटिनी था, वो वाले पर्सपेक्टिव्स है। फिर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाले पर्सपेक्टिव्स है। फिर मैंने मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है वो लिखा है ब्रॉडली, और एंड में कुछ बैलेंस्ड अप्रोच करना चाहे तो मैं पढ़ देती हूँ, फिर रिव्यूज बता दीजिए। British rulers had taken first step towards acquiring political power after the Battle of Plassey in 1757. After a century of policies of exploitation, expansion, and discrimination, the revolt of 1857 was one of the major uprisings which represented simmering discontent among the people of over many years. There are different perspectives on the analysis of the revolt of 1857. While the British historians term it as a mere sepoy mutiny and gave the revolt an unpatriotic and selfish nature, on the other hand, Marxist historians view it as a struggle of soldier and peasants against the foreign and feudal bondage. Further, Dr. K. Datta has termed it as mainly a military outbreak whose advantage was taken by other discontented sections like princes and landlords who were also affected by new political order. Conversely, B.D. Savarkar, in his book The Indian War of Independence, 1857, has interpreted it to be a first planned war of Indian independence. Another scholar, Dr. S.M. Sen, in his book 1857, considers that the revolt began as a fight for religion but ended as war of independence. ये फिर मतलब जो क्वेश्चन में पूछा है सिपाही म्यूटिनी या फर्स्ट वॉर, इन दोनों के सपोर्टिंग व्यूज दिए। इसके बाद ब्रॉडली बताया है कि नेचर क्या था। It can be said that revolt of 1857 represented discontent among diverse sections of population against the British rule. Although there was lack of any coherent political ideology or any alternative socio-political economic structure, yet the revolt had aspiration to claim political unity under the erstwhile Mughal ruler. This was seen from the declaration of Mughal ruler as the symbolic leader of the revolt. Further, it can be observed that the period between, मतलब ये जो फर्स्ट वॉर है इसका एनालिसिस है कि between 1757 to 1857 was not peaceful and witnessed multiple rebellions and revolts like Vellore and Bengal among others. The revolt shows remarkable sense of unity among Hindu and Muslim masses as well as leaders. Although all the sections of population as also entire geographical region of India did not participate, yet it was more than a sepoy mutiny as diverse sections including peasants, traders, small zamindars, artisans, princes actively participated, thus making it a popular revolt. In the words of Dr. R.C. Mazumdar, it was neither forced nor national nor a war of independence. However, the revolt sowed seeds of nationalism and anti-imperialism among the people, and the revolt was termed as the first great struggle of Indians to overthrow the British rule. इसके एंड कर दिया, बताओ। अच्छा लिखा यार आंसर तो आपने. मैंने भी लिखा था इस पे बट थोड़ा हैफेजार्डत मैंने इसलिए डाला नहीं वो.
बट मोर और लेस आप जो व्यूज है आई थिंक आपने बहुत ही अच्छे से उसको डाला है और फ्लो भी अच्छा है आपका इस आंसर। ओके, और कंक्लूजन मुझे लगता है थोड़ा एब्रप्ट हो गया, मतलब मैं समझ नहीं पा रही थी कंक्लूड क्या करना चाहिए, तो मैंने फिर ऐसे आसिम मजूमदार उनका, मतलब उन्होंने कोई स्टैंड नहीं लिया है शायद, उन्होंने बोला है फर्स्ट भी नहीं था, नेशनल भी नहीं था, वॉर भी नहीं था, बट सो सीड्स ऑफ नेशनलिज्म हो गया। आई थिंक इस पे तो मैम ने लिखवाया भी नहीं था, तो मैं वो स्पेक्ट्रम में ही देख रहा था, स्पेक्ट्रम में एक दो हाँ, कॉमन थे। अच्छी का अच्छा कॉमन था इस पे। इसको मतलब वैसे तो आंसर तो सही है, सारा पॉइंट इंक्लूड किया है, लेकिन इसको थोड़ा पॉलिटिकल साइंस का टच देने के लिए इसमें वो चीज डाल सकते थे क्या, एक मार्क्स भी मतलब बोलता है ना व्हाई इट इज फेल्ड के टर्म्स में, कि इट लाइक मास और पीपल डिडंट अंडरस्टैंड द ब्रिटिश रूल और समथिंग, वो प्रैक्टिस करके होता है ना, मतलब जो थियोरेटिकल एस्पेक्ट डालने के लिए मार्क्स का डाल सकते हैं ना। हाँ, they didn't implemented praxis। और कोई थ्योरी हो ऐसी जिसमें बोलता हो कि अगर जो स्टेट है वो आपके अकॉर्डिंग काम ना करे तो पीपल हैज द राइट टू ओवरथ्रो इट, उसको भी डाल सकते हैं कि वैसा नहीं तो स्टेट वो उनके परमिशन से थोड़ी बना है, वो तो एक कॉलोनियल वाला हो गया ना। तो इसमें जैसे आई थिंक इसमें ही स्पेक्ट्रम में ही इसमें लिखा हुआ है सबअल्टरन, इसके ऊपर आइडियोलॉजी थी, सॉरी सबअल्टरन वो वे ऑफ एक्सप्लेनेशन है, मार्क्सिस्ट एक्सप्लेनेशन है। तो जैसे इन्होंने मार्क्सिस्ट वाला ऐसे इंक्लूड किया है इसके अंदर पॉइंट, कहाँ था वो मार्क्सिस्ट वाला, हाँ तो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन का उन्होंने ये वाला पॉइंट इंक्लूड किया है कि उन्होंने एक सोल्जर पीजेंट का स्ट्रगल देखा था अगेंस्ट द फॉरेन एंड फ्यूडल बॉन्डेज, तो ये पॉइंट इन्होंने यहाँ पे इंक्लूड किया तो मार्क्सिस्ट का। तो ऐसे ही दो तीन और स्कूल्स भी थे इसके अंदर, जैसे ट्रेडिशनलिस्ट हो गए, ये आरसी मजूमदार का स्टैंड जो है इसके ऊपर वो डिनाउंस करता है कि सिपाही म्यूट मतलब फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं था। तो वो दो तीन और स्कूल्स हैं इसके अंदर। एक मेरे को इसके अंदर ताप्ती रॉय का मिला था, ताप्ती रॉय का भी थोड़ा इसमें था तो मैं वो पढ़ देता हूँ। तो बेसिकली रामचंद्र गुहा ने इसको कैसे व्यू किया है, ये सिपाही म्यूट, ये जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है, उसने ये बोला था कि ये रिवोल्ट ऑफ 1857 इसलिए हुआ था क्योंकि जो हायरार्किकल सिस्टम था हमारी सोसाइटी का उसको इन्वर्ट कर दिया था ब्रिटिश ने। तो वो कोई इंडिया बनाने के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो उस पुराने ऑर्डर को रिस्टोर करने के लिए लड़ रहे थे। ठीक है, तो ये आरसी गुहा का व्यू था, तो वो एक तरीके से वो भी डिनाउंस करता है कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं था, वो अपना जो पुराना एलिट या पुराना ओल्ड स्ट्रक्चर है उसको रिस्टोर करने के लिए लड़ रहे थे। और यही सेम ऐसे ही लाइंस पे कुछ क्रिटिसिज्म ब्रिटिश भी देते हैं, तो उनमें स्कॉलर्स से लॉरेंस एंड सिले, तो उन लोगों ने ये बेसिकली बोला था कि ये बेसिकली बारबेरियनिज्म और सिविलाइजेशन के बीच में एक वो फाइट था, और जो इंडियंस थे वो बेसिकली वही अपना एलिट टाइटल्स जो थे उसको रिस्टोर करने के लिए लड़ रहे थे और कुछ नहीं था। तो ये बोल के उन्होंने इसको सिर्फ एक सिपाही म्यूटनी बोला था। फिर आई थिंक हमने पढ़ा था बेंजामिन डिजराइली जो है ब्रिटिश एमपी, उन्होंने उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट को में पहली बार इस चीज को मतलब वो कैटेगरी बोला था कि ये एक इट इज नॉट जस्ट अ सिपाही म्यूटनी, इट इज मोर लाइक अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो उन्होंने भी इस चीज के साथ कनकर किया था। बाकी आई थिंक सब पॉइंट सही है, तो अपने आप में तो मेरे को तो ठीक लगा, बाकी और कोई एडिशनल तो बता दो। यार लास्ट पॉइंट क्या बोला था, मतलब अभी म्यूटिनी नहीं है, क्या बोला था मैं सुन नहीं पाया, सॉरी। हाँ वो स्कॉलर्स थे, इंग्लिश स्कॉलर लॉरेंस एंड सिले, उन्होंने ये बोला था कि ये जो है ये बेसिकली वॉर बिटवीन सिविलाइजेशन एंड बारबेरियनिज्म है। तो अपने आप को सिविलाइजेशन बता रहे थे और इंडियंस को बारबेरियंस बता रहे थे, और वो बेसिकली फाइट इसलिए कर रहे थे ताकि वो जो अपना पुराना जो एलीट टाइटल्स है, जो लैंडलॉर्ड वगैरह थे जिनकी जमीनें चली गई थी, वो उन्होंने इसको एक तरीके से सिमर किया है इस पूरे रिवोल्ट को। और ये बेसिकली रिवोल्ट नहीं है, ये बस एक सिपाही म्यूटनी है। मैं एक और चीज पूछ रहा था बीच में, जो बोला ना तूने कि आरसी गोवा वाला,
तो एक बार उसको चेक करेगा क्या कि आरसी गोवा है कि रणजीत गोवा है, अच्छा। क्योंकि मेरे को लगता है शायद रणजीत गोवा है जिसने सबाल्टर्न पर्सपेक्टिव दिया था, हाँ हाँ। एंड 1857 पे पर्टिकुलरली उसने लिखा है, तो एक बार चेक कर ले उसको। ठीक है, एक बार देख लूंगा यार, अभी तुम्हें भी शायद वो हुआ है। हाँ मतलब जो भी तेरा डाल भी सोर्स है ना, देना देखने के बाद। कंफ्यूज कर लेगा मतलब वो, क्योंकि वो दोनों कंफ्यूजिंग है, वो हाँ रणजीत सही और बोलो। रामचंद्र गोवा। रणजीत गोवा ने बाकी स्पेसिफिकली 1857 रिवोल्ट पे लिखा है, तो इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने शायद रणजीत गोवा पढ़ा है। नहीं नहीं, ये दोनों आई थिंक बाप बेटे ही ना शायद, इन्होंने लिखा है दोनों। तो मे भी हो सकता है वो रंजीत गुहा हो जो तू कह रहा है। मैं एक बार चेक कर लूंगा इसको। ओके ओके। ठीक है, और कुछ था क्या किसी के पास इसमें? ठीक है, आई थिंक नेक्स्ट पे चलते हैं। Second, national movement in India was an anti-imperialist and increasingly radical in its socio-economic and political program. Discuss. तो वरुण ने लिखा है इस पे। I started with Treaty of Allahabad, like which laid the imperial powers in the hands of British to collecting divan rights, like new tax structure and forest encroachment, land grabbing and this resource encroachment, extraction, like that. And then the people of British rule felt that this was exploitative, and then the revolts take place, like civil revolt, tribal and religious revolt. They didn't even exploit cultural, economically, but also culturally, and that resulted in Sepoy Mutiny of 1857. Then the Crown Rule came in. I gave some. Then how they came into like semi-hegemonic and semi-authoritarian, unlike which is like Hitler and Germany type. And Indians felt that British rule was moreover like benevolent and they are modernizers, like that. And like they also brought some acts like Sharada Act, Sati abolition. This made them legally authoritarian, and people were too weak and disunited to oppose them successfully. So Indian nationalists were uh, they they tried to use this Gramsci formula of war of position to bring a long drawn hegemonic struggle. And some intellectuals like Dadabhai Nehruji, drain of wealth theory, which later was overtaken, I think, British Bengal split, which disunite. Like, okay, I wrote this. I missed one sentence over here. Like how they try to suppress this the unity. Actually, we can use this power thing, like power is sui generis when people come together. Like they thought that Bengal is the power center and they try to break this center. So, and the Swadeshi movement, which India fought with like culturally by Ganapati and Shivaji festivals, and economically by setting up some indigenous industries, which Emmanuel Wallerstein explains by Wall system, like core and periphery system, how peripheries will be exploited. And then Indian strategy was like educate people, adult education, vocational training, like that. And through Congress sessions, they created political awareness at every level, capacity building, like that. And I mentioned this also, like why Indian nationalists, they didn't use this praxis as Marxist, as Russian revolutions used. They used especially like praxis, what they have to implement, but
our struggle was more ideological and radical. However, Gandhi tried to execute this mass struggle like carefully by his technique of like masses will hold mass movement was short-lived, so he followed this struggle, truth and struggle carefully. And economic struggle, like Gandhi's idea of Khadi, village industry spin, like he promoted economic struggle, and then like that's why like question as radical movement of economic and social struggle. Like we were radical in economic struggle, but politically there was some delay, like um, to to suppress this benevolent despotic and to create like actual propaganda. It took time, and I ended with Rabindranath Tagore's quote of British will finally give us independence, but they will leave the field that even generations couldn't clear. ठीक है यार. Bro, can you summarize it with all the points which were asked in questions specifically? Like how do you address this anti-imperialist aspect, and another one is political programs. Okay, Gandhian, you have mentioned political programs of Gandhian, okay. Socio-economic, you have mentioned about Dadabhai Naoroji, and how this anti-imperialist. Swadeshi movement also I mentioned. Actually, I may be missing that anti-imperialist. इसमें स्कॉलरली व्यूज भी थोड़ा मिसिंग लग रहा है. थोड़ा नहीं, ज्यादा मिसिंग. तो कुछ ऐड ऑन करो यार, इसमें क्या क्या और ऐड ऑन कर सकते थे हम लोग. डायरेक्ट बता सकते अपन. इंडियन नेशनल मूवमेंट प्रोटेक्टेड था, अलग अलग टाइम पे अलग अलग लीडर्स ने अलग अलग स्ट्रेटेजी यूज की, ठीक है. बट एक सेम कैरेक्टर रहा कि उन लोगों ने ये बिलीव किया है कि उनको मतलब अपना जो ब्रिटिश का जो रूल है थोड़ा थोड़ा एलियन इन कैरेक्टर है, एब्सेंटी सोवरेनिटी ऐसा कुछ कोई वर्ड होगा, उसमें कर सकते हैं. और उसके कैरेक्टर्स वगैरह बता देंगे क्या क्या था. जैसे स्टार्टिंग में मतलब जैसे मॉडरेट्स का अपना क्रिटिक उसने दिया, इकोनॉमिक क्रिटिक, ड्रेन ऑफ वेल्थ वगैरह दे दिया. फिर इनका ये बता सकते हैं कि नेहरू का जो बाद में जो आते हैं वो लोग बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल है ही नहीं, हमारी गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, तो कॉन्स्टिट्यूशन मेथड्स करके कुछ नहीं होगा, हमें एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड के ऊपर ध्यान देना चाहिए वगैरह. तो उसमें वो प्रोटेस्ट और वो सब दिखा देते हैं, ठीक है. तो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग बन चुकी थी कि हमारे इंटरेस्ट और उनके इंटरेस्ट अलग होते हैं, ठीक है. तो इसलिए हमको ये अपने राइट्स के लिए क्लेम की तरह हमको लेना चाहिए, ना कि एक गिफ्ट की तरह लेना चाहिए जो ये है ब्रिटिश के तौर पे. फिर मार्क्सिस्ट और वो वाले दे देंगे जो भी थे, इम्पीरियलिस्ट और वो लेनिन का कुछ तो था, कोलोनिज्म और इम्पीरियलिस्ट को उसने जोड़ा था, कैसे वो एक्सप्लॉटेटिव इन कैरेक्टर रहते हैं. और फिर बाद में सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रोग्राम्स, उसमें शायद वो गांधी और उसका दे देंगे, इनका भी दे देंगे, एक्सट्रीमिस्ट वगैरह का. इन लोगों ने समझा कि मासेस को इंक्लूड करना हमारे पॉलिटिकल स्ट्रगल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी वो लेजिटिमेसी हमारे मूवमेंट को मिलेगी और हमारे कांग्रेस वगैरह को मिलेगी. तो सोशियो वगैरह में उन लोगों ने कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम गांधी वगैरह के होते हैं, तो उसमें खादी, विलेज इंडस्ट्रीज और वो सब दिया था उसने. एजुकेशन इन लोगों ने भी दिया, स्वदेशी वगैरह में भी दिया उन लोगों ने. उसमें वो प्रोडक्ट्स और वो इंडस्ट्री, नेशनल एजुकेशन वगैरह उसने मतलब फोकस किया. फिर उसमें क्योंकि डिवीजन से हमारे कास्ट और उसमें तो एक यूनिटी और फ्रेटर्निटी लाने के लिए हमने सर्वोदय गांधी का हो गया और इनका एजुकेटेड
एजुकेशन टू द SC STs, या अनटचेबिलिटी को हटाने वाला हो गया, वो सब भी हमने किया। इकोनॉमिक में कुछ अच्छा है क्या अपने पास, कुछ किया है ऐसा? खादी और विलेज वगैरह तो है, और लेवल इंडस्ट्रीज वगैरह भी है। आई थिंक स्वदेशी से ही तो, हाँ स्वदेशी को ही थोड़ा एक्सपैंड कर देंगे ना, जैसे हम वो बात कर रहे थे वीओ चिदम्बरम ने वो स्टीम लोकोमोटिव इंजन्स लोकोमोटिव के लिए वो इनिशिएटिव लिया, और फिर कुछ स्वदेशी फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश करी 1905 के बाद ही। फिर उसमें सोशो के अंदर हाँ फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश करी, और फिर सोशो के अंदर हमने देखा कि जो पेंटिंग स्टाइल थे वो आए थे अपने, और एक तरीके से कल्चर चला दिया गया था कि वी हैव टू रिजेक्ट ब्रिटिश मेड गुड्स एंड जो इंडियन मेड गुड है उनको यूज कर रहे हैं। आई थिंक उसी सेंस में स्वदेशी पे अगर अपन एक्सपेंड कर देंगे तो सोशियो और इकोनॉमिक काफी हद तक कवर हो जाएगा। पॉलिटिकल में शायद अपन जनरल अंडरस्टैंडिंग दे देंगे कि मासेस को लाना जरूरी था, और ऐसा जनरल कंसेंसस बन चुका था अलोंग अक्रॉस पार्टी लाइंस वगैरह कि यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइजी वगैरह लेना है, वुमेन्स को भी राइट्स वगैरह देना ही है हमको, मतलब वो हो गया था। और उसका हम लोग लॉजिकल कल्मिनेशन देख सकते हैं, फ्रीडम के बाद हमने यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइजी, वुमेन राइट, रिजर्वेशन वगैरह सब आता ही रहा है हमारा। तो इनके जो बेरिंग्स थी वो उनका फाउंडेशन हमारे इंटरनेशनल मतलब इंडियन नेशनल मूवमेंट में ही था। ऐसा कुछ करके एंड कर देंगे, ऐसा कुछ सही रहेगा। मतलब साथ ही साथ में अपने को ये रेडिकल वर्ड को बार बार एड्रेस करना पड़ेगा। मतलब कि जब डिमांड दिखा रहे हैं तो बताएंगे कि हम अडल्ट फ्रेंचाइज की डिमांड कर रहे थे, और वो एक्चुअली उस टाइम पे यूरोप में भी काफ़ी कंट्रीज के पास नहीं था। वीमेन के लिए वोटिंग की बात कर रहे थे। तो ये जो पॉलिटिकल प्रोग्राम्स हैं ये हमारे रेडिकल थे। और इवन जो सोसाइटी में जा करके भी जो अनटचेबिलिटी और उन सब को चैलेंज कर रहे थे गांधी जी, तो उसमें भी बोल सकते हैं वो भी रेडिकल थे, क्योंकि सोसाइटी उस समय पे ऐसी नहीं थी। अम्बेडकर जी के आइडियाज को भी अपन रेडिकल बोल सकते हैं। सब ये भी डाल सकते हैं। और रेसिज्म से भी शायद कर सकते हैं कंपेयर। वही अमेरिका वाला ना। हाँ, अमेरिका रेसिज्म और शायद अनटचेबिलिटी का एक तरह का सोशल डिस्क्रिमिनेशन ही है ना। वैसा बोल के करेंगे कि वी वर फायर फार अहेड ऑफ आवर टाइम से, ऐसा कुछ। हमने फिर उसमें अफर्मेटिव एक्शंस वगैरह भी दिया, रिजर्वेशन वाला भी हमने ट्राई करने की दिया, ताकि वो एक इंक्लूसिव कैरेक्टर आ सके, उनको रिप्रेजेंटेशन मिल सके वाइडर सेक्शंस को, जो कि इवन यूरोपियन के वेल अहेड कंट्रीज में भी नहीं था। हाँ, इसमें अपन वो कांग्रेस के सेशन से इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे नेहरू रिपोर्ट हो गया, या फिर 1931 का जो सेशन हो गया कराची, जहाँ पे फंडामेंटल राइट्स का बोला था। तो उसमें बहुत ही होलिस्टिकली वोटिंग राइट्स वगैरह भी कवर किए थे और सबको दिए थे। तो जो पॉइंट बोल रहा था कि वुमेन को राइट नहीं मिले थे या सबको राइट नहीं मिले थे, तो वो इंडिया के अंदर बहुत पहले से ही सोशियो इकोनॉमिक जो प्रोग्राम चल रहा था नेशनल मूवमेंट के अंदर, तो वो बहुत ही ज्यादा होलिस्टिक था और अब वे अहेड ऑफ इट्स टाइम था। आई थिंक वैसे थोड़ा और होलिस्टिक हो जाएगा। और वो भगत सिंह का जो सोशलिज्म था वो भी काफ़ी रेडिकल था। मतलब वो सिर्फ फॉरेन से ही नहीं, अपने यहाँ के जो भी फ्यूडल और जो भी अपने जमींदार थे उन सब से भी अपना फ्रीडम चाहते थे। तो काफ़ी ज़्यादा रेडिकल था वो भी। तो वो इकोनॉमिक में रेडिकल आ जाएगा। गुड। हाँ, इसमें लेकिन थोड़ा सा कुछ स्कॉलर्स डालने पड़ेंगे ना, नहीं तो फिर वही जीएस वाला लगने लगेगा। मैं यही बोलने वाली थी। अरे तो ऐसे कर सकते हैं क्या, ये जैसे यही सब जो स्कॉलर्स है उनके अगर स्कूल ऑफ थॉट लिख दिए तो, क्योंकि ऐसे तो स्कॉलर्स का पता नहीं है और वो करते बैठेंगे तो टाइम बहुत चलेगा। लीडर्स को ही देना पड़ेगा अपने को। जैसे वो 1930 वाला जो सेशन था उसमें वल्लभ भाई पटेल ने किया था ना, तो उनका ही थोड़ा सा डाल के अपन कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो प्रेसिडेंट थे तो वो उनके ही आइडियाज को ही हमने एक फॉर्म दिया है सेशंस में जो कंक्लूड किए हमने। ठीक है, राइट। ठीक है, तो स्कूल ऑफ थॉट डाल के उनके आगे उस आइडिया पे अगर अपन चलेंगे तो शायद हो जाएगा इसमें। और एक किसी का कोट था ना कि इन वर्ल्डली affairs we have to behave like Krishna and not like Buddha। इसका था ये, इसी सेंस आई थिंक इसने गांधी के ऊपर कमेंट किया। अमृत्य सेन है क्या? उसी का ये है थोड़ा न्याय और वो वाला। तो
जब मुझे न्याय मिले वाली। मैं लिख दूंगा बाद में। पर ये कहाँ था, तो ऐड तो कर ही सकते हैं कहीं ना कहीं बीच में। हम्म, ये थोड़ा बहुत रेडिकलिज्म के ऊपर भी टच करता है ये। पॉलिटिकल एस्पेक्ट डालना है तो फिर उनको डाल सकते हैं, औरोबिंदो घोष का थियोरी ऑफ कल्चरल नेशनलिज्म, वो भी एक काफी अच्छा एक पॉइंट है बीच में। सही कह रहा हूँ। तिलक का था राइट। ये कृष्णा वाला। अच्छा, तिलक ने गांधी के ऊपर बोला। ये कमेंट में डाल देना इधर शानू। डाल दूंगा। ऑलराइट देन, आई थिंक नेक्स्ट। ये नोट भी करना चाहिए था, मैंने नहीं लिखा इस बार, किसी और ने लिखा होगा तो Computer पोस्ट कर दो। वो रिकॉर्ड हो रहा है तो थोड़ा सा मेहनत है, बट वो मिल जाएगा उसके ऊपर यूट्यूब पे। औरबिंदो को कौन सा बोल रहे थे? कल्चरल नेशनलिज्म थ्योरी है ना उनका। हाँ 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 राइट। कंक्लूजन क्या रहेगा फिर? शायद वही वाला कि हमने क्या क्या इंक्लूड किया है, इसका सारा बेरिंग इसमें था, इंडियन नेशनल मूवमेंट में था। ये तब मतलब और वो उसका इफेक्टिवनेस हम ये देख सकते हैं कि अभी तक हमारी पॉलिटी और हमारा सोसाइटी में दो देयर वर इश्यूज बट लार्जली इट रिमेन स्टेबल इंक्लूसिव इन कैरेक्टर, ऐसा कुछ। इस पे ना भगत सिंह का वो एक लाइन नहीं है कि इंडिया को सिर्फ फॉरेन योक से आजाद कराना, लाइक लिबरेटिंग इंडिया फ्रॉम द फॉरेन योक इज नॉट जस्ट इनफ। हमको ऐसे पूरा मतलब उसी लाइंस पे थोड़ा मोल्ड करके उस स्टेटमेंट को ये लिखना है कि सिर्फ फॉरेन रूल से आजाद कराने का मकसद नहीं था नेशनल मूवमेंट का। उस नेशनल मूवमेंट का ये भी मकसद था कि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मैन बाय मैन, मतलब एक आदमी जैसे कैपिटलिस्ट है या फ्यूडल लॉर्ड है, वो पीजेंट का वो कर रहा है, क्या बोलते हैं, एक्सप्लॉयटेशन, तो उससे भी हमें हटाना है। तो उस थोड़ा भगत सिंह का वो स्टेटमेंट है ना, उसको मोल्ड करके यहाँ पे हम लिख सकते हैं, तो वो पूरा इस लाइन में फिट हो जाएगा। सेम तो फिर गांधी का भी है, वो वाला भी डाल सकते हैं फिर, ब्रिटिश एंड कैरेक्टर वाला स्वराज, रियल स्वराज क्या रहेगा इंडियंस के लिए। करेक्ट, वो- हाँ, उस सेंस में भी हम सम कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, देन आई थिंक नेक्स्ट पे चलते हैं। Question number 3rd. So this was a comment: Indian nationalism as depicted in S.N. Banerjee's A Nation in Making. So कौशिक कान से पढ़ लेते इस पे। गौरव, आप पढ़ लोगे क्या ये आंसर? हाँ मैं पढ़ लेता हूँ। The question is Indian nationalism as depicted in S.N. Banerjee, A Nation in Making. Answer है the face of Indian history from 1857 to 1947 remained a contested. Many political activities changing in nature with time. Many political activities changing in nature with time was taking place in the subcontinent, and there is a debate over description of India as a nation. Indian nationalism and Indian national movement. Colonial approach which dominated the discourse was mainly influenced by colonial ideology of domination and criticized indigenous society. For example, John Strachey in his book India, Its Administration and Progress 1888 denied India as a nation. He said there is no India and never was. Further, John Seeley considers India as not as just geographical expression. However, this view was countered by first by INC moderates such as Surendranath Banerjee
gave alternative discourse. S.N. Banerjee was liberal, Western educated nationalist who held that India was a nation in making. This school thus accepted that India is not a nation yet but a nation in making. Even leaders such as Tarachand held that India as a nation is of recent phenomena. This school describes India's freedom struggle as a national movement and the movement of people for freedom and liberty. However, later young leaders such as Aurobindo Ghosh countered both approach. In his theory of cultural nationalism, he held that India was a nation, is a nation and will always be a nation. He further stresses that nationalism is not a mere political program. Nationalism is a religion that has come from God. Thus, idea of India as a nation and Indian nationalism both remain meta-narrative that needs to be critically examined from multiple narratives. किसी को ये आइडिया है क्या बुक के पॉइंट्स क्या थे एसएन बनर्जी और नेशन मेकिंग? ये तो मैम ने भी इतने अच्छे से लिखा है, कहानी है। मेजर शायद वो एक रिएक्शन के तौर पे, मतलब जितना मुझे पता है कि रिएक्शन के तौर पे था कि इनका जो कॉलोनियल वालों का जो इंटरप्रिटेशन है उसके खिलाफ था, कि वो अग्री कर रहे हैं कि नेशन अभी तक है नहीं, बट वो होपफुल भी है कि अंडर ब्रिटिश रूल हम अचीव कर सकते हैं, क्योंकि वो वेस्टर्न एजुकेटेड और वो सब डाल के अपन शायद कुछ ना कुछ बोले, लेकिन इतना तो पता नहीं है असली में क्या था, ये तो नहीं पता है। मतलब ये जो अप्रोच इसने लिए ये सही है क्या? मतलब जैसे इसने शुरू में क्रिटिसिज्म दे दिया तो फर्स्ट पेज तो जनरल ही है, और फिर 2 पैरा में इसने वो बुक्स के थोड़ा आइडिया दिए हैं जनरल, और फिर ये वापस से एक डिफरेंट व्यू ले आया है और फिर कंक्लूड में एंड कर दिया है, या पूरा ही मतलब इन्होंने पहले पेज पूरे में कॉन्टेक्स्ट सेट किया है कि मतलब ऐसा कौन बोलते हैं कि इंडिया इज नॉट अ नेशन, तो इन्होंने पहले वो बताया। मतलब वो मुझे लगता है वो थोड़ा कट शॉर्ट कर सकते थे वहां पर, थोड़ा सा बैनर्जिया के बारे में इंट्रोड्यूस करके कि वो लिबरल हैं, ये है वो हैं, यहाँ से इंट्रो करके फिर कॉन्टेक्स्ट सेट करते थे कि नेशन इन मेकिंग का कॉन्टेक्स्ट क्या था। कॉन्टेक्स्ट वही था जो 2 नाम डाले उन्होंने, एक पैराग्राफ में उनको बता सकते थे कि ये काम बताया उन्होंने, फिर उनको उन्होंने एक्सेप्ट किया। फिर जो पैराग्राफ उन्होंने डाला है सेकंड पेज पे कि हाँ INC और वो सब वो डाल सकते हैं, कि उन्होंने पहले तो एक्सेप्ट किया कि हाँ इंडिया इज नॉट अ नेशन बट वी आर नेशन इन मेकिंग, तो उस प्रोसेस में है, फिर बाद में कट जाए। मतलब थोड़ा आर्टिकुलेट ऊपर नीचे रिस्ट्रक्चर करके हो सकता है, ठीक। ऐसे कंटेंट तो वही है, बाकी तो एक्स्ट्रा तो पता नहीं यार। तो यार इसने भी कुछ पॉइंट्स डाले ना, समझ में सब कुछ डाल दिया, ढूंढने की क्या जरूरत है। Nation as India as a nation in making, many Indian nationalists and nationalist historians did not consider India as a formed nation in modern times. सुरेंद्रनाथ बैनर्जी उनमें से था और उसने वो चीज बोली थी। R.C. Majumdar argued that the conception of India as a common motherland was still in realm of fancy. ताराचंद वाला पॉइंट भी आई थिंक उन्होंने रेज किया है। Then India is an ancient nation, quite powerful trend which asserted that India had been a nation since earliest time. Radha Kutum Mukherjee in The Fundamental Unity of India 1914 and many other work had famously put forward the idea of India has been great and unified in ancient times. I think इसमें बेस्ट तो शायद अरबिंदो का ही रहेगा आइडिया अगर डालना है तो, इंडिया एज अ नेशन। ठीक है, इसका आई थिंक गायत्री ने रिव्यू किया। गायत्री, SCR का आपने पढ़ा है क्या आंसर? हाँ पढ़ा था। हाँ तो रीड करना चाहिए क्या अपने को, कुछ पॉइंट मिलेगा?
कौशिक ने तो अच्छा लिखा है। नहीं SAR ने उसने हाँ पढ़ा था मैंने। तो उससे अभी कुछ किसका वैल्यू, रीड किया हमने? ये मैं तो उसका कौशिक का अभी तो कौशिक का किया ना। आई थिंक उसमें एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं हो, मैंने ही पढ़ा था। हाँ हाँ एक्स्ट्रा नहीं है। अच्छा वही पूछ रहा था मैं। ठीक है देन आई थिंक फिर मे बी अपन नेक्स्ट पे चलते हैं, पहले लग नहीं रहा इस पे तो। तो इसमें कंक्लूजन क्या, ये जो जैसे कौशिक में थोड़ा वैसे, या फिर हमें थोड़ा पॉजिटिव पे छोड़ना चाहिए कुछ, वो पीपी चंद्रा का नाम? हाँ कुछ ऑल्टरनेटिव कंक्लूजन हो सकता है इस पे? ये तो बहुत वीक लग रहा है। अरविंद घोष का दे सकते हैं ना, इंडिया इज ऑलवेज ए नेशन। वो थोड़ा ज्यादा प्रीची नहीं हो जाएगा? हाँ दूसरे आंसर में देख लेते हैं उन्होंने क्या कंक्लूड किया है, वहां से कुछ आइडिया लग जाए। वहाँ पे तो औरोबिंदो के भी औरोबिंदो लिखा था उसने। अच्छा अरविंद का था। Aurobindo, India, अच्छा वही वाली सेम लाइन, India is the spirit who's currently asleep. Similarly, Lala Rajpat Rai held that India has been a nation since past 2000 years. मतलब इसको उस पे एंड कर सकते हैं, मतलब एक ओरिएंटलिज्म की है ना, कि वो जस्ट एक प्रोपेगेंडा था, पॉलिटिकल थ्योरीज थी, अदरवाइज इंडिया तो एक बहुत बड़ा सिविलाइजेशनल वो है, ओल्डेस्ट सिविलाइज, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस में आएगा, तो उधर भी एंड कर सकते हैं। हाँ फिर आप आई थिंक वापस अरविंदो को यूज करके वो चीज को सब्सटैंशिएट कर देंगे कि हाँ ये सपोर्ट करा इस चीज को। ठीक है इस लाइन पे सही रहेगा ये। मुझे एक डाउट है कि क्वेश्चन में नेशन मतलब नेशन के बारे में बोल रहे हो, और अपन सिविलाइजेशन एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसका एक्सप्लेनेशन नहीं देना पड़ेगा फिर? नहीं मतलब मैं बोल रहा था कि मतलब पहले तो वही ओरिएंटलिज्म डाल करके सिविलाइजेशन, तो ऐसे करके कि मतलब बहुत टाइम से चलते आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि मतलब कोई नई जगह खुली है, फिर कोई नई कंट्री, नया कोई ज्योग्राफी ढूंढा है। यहाँ पर लोग बहुत पहले से रह रहे थे, काफी लंबा सिविलाइजेशन, मतलब कि लोग काफी जगह से रह रहे, काफी टाइम से रह रहे हैं, तो उनके पास अपना एक कल्चर है, एक अपना सोसाइटी है। तो ऐसा नेशन बोल के अभी जन्मा है तो ये नहीं बोल सकते। ओके अच्छा शायद सपोर्ट में शायद अपन अम्बेडकर का दे सकते थे, इंडिया इज नॉट अ नेशन, वी आर अ वो कम्युनिटी वॉरियर, ऐसा कुछ था। और फिर द मोर मतलब कितना जल्दी हम लोग ये रिकॉग्नाइज करेंगे उतना जल्दी हम नेशन में अपने आप को ढाल सकते हैं, ऐसा कुछ था। हाँ ये बोल रहा था किसका था ये? बी आर अम्बेडकर। हाँ वॉरिंग कास्ट, बट वो थोड़ा नेगेटिव मतलब क्वेश्चन के सिमिलर है, बट ऐसे मतलब सिविल एग्जाम बोल रहा हूँ तो बीच में कहीं जैसे औरबिंदो का मैंने डाला है एक व्यू जो बोल रहा है कि पूरा का पूरा नेशन है, और दूसरा व्यू जो अम्बेडकर बोल रहा है पूरा का पूरा नेशन नहीं है, मतलब दो अलग व्यूज देने के लिए। हाँ मतलब ये जो गौरव ने बोला है ना, तो वो मतलब एक ट्रेडिशनल सिविलाइजेशन वाला पॉइंट हो गया, और फिर ये बोल देंगे जो मॉडर्न नेशन स्टेट है उसकी तरह इमर्ज कर रहा था उस टाइम पे, तो आई थिंक तो दोनों बैलेंस हो जाएगा, एकदम ऐसा भी नहीं लगेगा कि एकदम औरबिंदो वाला ही व्यू ले लिया। हम शायद बाद में बोल सकते हैं कि इंडिया मतलब जब वो आदत हो गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह ने स्टेट का जो ये नेशनलिज्म है, असली का जो नेशनलिज्म है उसको रिकॉग्नाइज किया, स्टेट्स को ये देके ऑटोनॉमी देके ऐसा कुछ, क्योंकि असली नेशनलिज्म तो स्टेट्स में ही है। अच्छे से उसको फ्रेम करना पड़ेगा, क्योंकि नेशनलिज्म इटसेल्फ एक मॉडर्न कंसेप्ट के फॉर्म पे है ना, जो नेशन स्टेट का जो नेशनलिज्म है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से बहुत हो गया, देखते हैं अगर कुछ मिला तो। ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. So, what are the unique feature of Gandhian movement? Compare the philosophy of civil disobedience movement (CDM) with Quit India movement. तो गायत्री आपने लिखा है इसका आंसर, एक बार ब्रीफ स्ट्रक्चर बता दो अपना, फिर रीड कर लें। पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन को लिखा है, व्हाट आर द यूनिक फीचर ऑफ गांधीयन मूवमेंट। वहाँ पे जो पॉइंट है, प्रोटेक्टेड मूवमेंट, मास साइकोलॉजी के ऊपर, प्रोएक्टिव रादर देन रिएक्टिव, और जो बिपिन चंद्र जी ने बोला था, स्ट्रगल टू स्ट्रगल, देन और साइकोलॉजी के ऊपर लिखा था। ऐसे कुछ 4-5 पॉइंट है ना, उसको ही एक्सप्लेन किया था मैंने, जो यूनिक फीचर ऑफ गांधीयन मूवमेंट पे आया था बिपिन चंद्र को कोट करके। यहाँ पे शानू ने कमेंट किया था कि जो वीमेन मूवमेंट, जो SC/ST जो भी था, मुझे क्या लगता है वो वाला अगर लिखेंगे ना, वो मतलब आपका जीएस वाला हो जाएगा। अगर जीएस में ऐसा क्वेश्चन है तो हम वो लिख सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट और पीएसआर एस्पेक्ट देने के लिए ये सारा पॉइंट लिखना होगा। प्रोटेक्टेड मूवमेंट, पैसिव फेसेस, एक्टिव मूवमेंट, मास साइकोलॉजी, प्रोएक्टिव रादर देन रिएक्टिव, ऐसा वाला मुझे लगता था, और मैम के नोट्स में भी वही है ना? हाँ वही है, उसी लाइन्स में। हाँ, तो उसके बाद ना मैंने बीच में एक नॉन वायलेंस वाला, उसका गांधी जी का मतलब यूनिक फीचर नॉन वायलेंस वाला डाल के उसको ही रिलेट करके मैंने मतलब वो दोनों जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड क्विट इंडिया मूवमेंट को जोड़ा है, क्योंकि मुझे एब्रप्टली ये दोनों डायरेक्टली लिखना नहीं था। मुझे लगा कि कुछ मतलब वो क्वेश्चन तो एक साथ है तो लिंक करके लिखते हैं, तो वो लिख के जो गांधी जी की मूवमेंट है, क्या बोलते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड क्विट इंडिया मूवमेंट के ऊपर, उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा लिखा था, लेकिन उसके डिफरेंस लिख दिया था। लाइक क्या, ठीक है, एक बार यार रीड कर दो ना इसको, थोड़ा बेटर हाँ अंडरस्टैंड। मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से रीड करती हूँ। उसके ऊपर तो नॉर्मली आफ्टर दैट इन 1930 सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड बाय गांधी। इट वाज डायरेक्ट चैलेंज टू द अथॉरिटी ऑफ द ब्रिटिश राज एंड मोर ऑफेंसिव इन पोजीशन। Gandhi was influenced by Thoreau, who described civil disobedience movement as peaceful protest by civil society against the unjust law of authorities. The reason against disobedience was, ये एक लाइन में लिख दिया था, एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट, इकोनॉमिक डिप्रेशन, साइमन कमीशन, डेथ ऑफ लाला लाजपत राय। ये लिख के इन दिस मूवमेंट विच इज मोर ऑफेंसिव इन नेचर put government in dilemma. If they use force against peaceful protest, then myth of benevolent despotism get explored, and if not, then direct challenge to government hegemony. From that, it clearly shown how Gandhian movement was psychological and controlled in manner. Unlike the Quit India, उसके बाद Quit India movement पे आ गई मैं. The Quit Indian movement, which was most un-Gandhian in nature, he directly asked British to leave India, unlike civil disobedience movement, which was peaceful. Quit India movement was more spontaneous. Once the top leadership was arrested, grassroots root people took the leadership, which is exactly what Gandhi wanted. Why Gandhi permitted violence in Quit India movement? देन मैंने फ्रांसिस हुडसिन्स उसको कोट करके बोला था। उसने बोला था कि गांधी आफ्टर ऑल वाज ए politician and strategist. The purpose of Gandhi is using non-violence in other movements like non-cooperation movement or civil disobedience movement is to bring masses within the fold of Indian national movement. Once it was achieved, non-violence was no more required. Then last में मैंने लिखा था कि from above it can clearly see how philosophical difference took place in Gandhi's various movements. As Bipin Chandra said, Gandhian movement was most practical. जो बिपिन चंद्र जी ने बोला था उसको लिख दिया था।
यहाँ पे सानू ने बोला था कि 3 बार मैंने बिपिन चंद्र को लिखा, लास्ट में मैं BR अम्बेडकर को लिख सकती थी। नहीं, बी आर अम्बेडकर का मैं क्रिटिसिज्म बोल रहा था जो उसने वो हाँ दिया हाँ, था। ये बहुत पर criticism था। एंडिंग तो आई थिंक बिपिन चंद्रा से हम वो यूज कर सकते हैं ना, वो वार्मथ ऑफ द मूवमेंट इज स्टिल फेल्ट ऐसा। हाँ वो मतलब पर्टिकुलरली इंडियन नेशनल मूवमेंट के ऊपर बोला था बिपिन चंद्र जी ने। तो मैंने मतलब मैं लिखने ही वाली थी, उसके बाद मुझे लगा कि वो तो डायरेक्टली इंडियन नेशनल मूवमेंट के ऊपर होगा, और ये तो मतलब पर्टिकुलरली गांधी जी के ऊपर बोल रहा था, इसलिए मैंने अंडरस्टैंडिंग ऑफ मास साइकोलॉजी वाला पॉइंट लिख दिया। बिपिन चंद्र जी ने वो इंडियन नेशनल मूवमेंट के ऊपर वो बोला था। और मैंने यूनिक फीचर में गांधी एंड ग्रामजी को मतलब कोट किया था, वार ऑफ पोजीशन एंड वार ऑफ जो होता है मैन्यूवर, ये तो मैम के नोट्स में ही है। सही है यार। कोई और एडिशन करना है किसी को इसमें? एक इसमें जूडिथ ब्राउन करके बोला था ना कि गांधी के उसका ही आइडिया अच्छा है। आर नॉट क्या बोला था उसने, 2 मिनट बदल। कि वो पार्शियली Gandhian ideology was based on mass psyche and appeal to a few wholly but many partially. हाँ, एक तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये बढ़ाई कर रही है या वो क्रिटिक दे रही है। नहीं, अच्छा ही बोल रही है कि अगर थोड़े लोगों को पूरा का पूरा उसको पूरा का पूरा बिलीव करते हैं वो गांधी के ऊपर, लेकिन एटलीस्ट हम ये तो अग्री कर सकते हैं कि सबको कुछ ना कुछ पार्ट्स तो गांधी के लॉजिकल लगते हैं। करेक्ट। सारे नहीं, ये लेकिन कुछ तो इंट्रो में लगते डाल हैं। सकते हैं। हाँ, मोल्ड करके शायद अपन कंक्लूजन भी कर सकते हैं, लेकिन इंट्रो में शायद ठीक लगेगा। ठीक है। और कोई पॉइंट अच्छे से क्या बोला, रिपीट करने पर? फर्स्ट पार्ट तो ज्यादातर क्या होता है कि अपने को सेकंड पार्ट पता है ना, तो सेकंड पार्ट में ज्यादा रहता है अपना ऐसा कुछ। इसमें तो फर्स्ट पार्ट में तो गांधीयन उसके यूनिक फीचर्स ही बताने थे, तो ये तो ऑलमोस्ट फैक्चुअल ही होता। पर इसमें स्वराज और सत्याग्रह को तो हमें इंक्लूड करना ही पड़ेगा। सर्वोदय वो से भी डालना था, क्योंकि फिर वो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स और वो सब और इंडिविजुअलिटी के लिए वो जो किया है वो भी एक तरह का मूवमेंट ही है, जो पॉलिटिकल और सोशल मूवमेंट को उसने साथ में लेके एक यूनिफाइड लिया था, अलग अलग नहीं किया था ऐसा। मतलब जो उसमें लिखे हैं गायत्री ने पॉइंट्स, वो तो सारे वैलिड है ही, मतलब छोटे छोटे, मतलब जब उन पॉइंट्स को इंक्लूड कर देंगे ना तो होलसम हो जाएगा। आई थिंक सत्याग्रह वगैरह वाले पॉइंट्स शायद हाँ वो मिसिंग है। एक कोड भी था, वो मैंने डाल दिया है कमेंट में ही, मेरे सत्याग्रह के ऊपर था वो इंदिरा रॉदरमैन। It emphasized not only on satya but also on the means of holding on to it. वो भी डाल सकते हैं कि ये मेथड जो है उनके आइडियाज और दूसरे से इंस्पायर्ड होके भी है, और खुद उनके एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस से मिले, जो साउथ अफ्रीका में किया है या उससे किया है। तो उन लोगों ने उन्होंने अपना जो ये है मेथड वो डेवलप किया है इन टाइम थ्रू एक्सपीरियंस, ऐसा कुछ। एक आध लाइन नहीं जानना तो वो भी चलेगा, ऐसा कुछ। लगभग सारी पॉइंट कवर किए, वो मैन्यूवर और पोजीशन और वो सब तो देखे ही है मतलब आंसर में। अगर ये वाला एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट आर द यूनिक फीचर ऑफ गांधीयन मूवमेंट, तब ये सारा पॉइंट इंक्लूड कर सकते हैं हम लोग इसके साथ। यहाँ पे भी करना था एक एक कि मतलब दोनों क्वेश्चन मिक्स करके दिया था ना, शायद मैंने ज़्यादा एम्फेसाइज दिया था सेकंड में। नहीं, आपने सही दिया है। मेरे को लगा कि आपने शायद नहीं दिया, मैंने बाद में देखा तो लगभग 1.5 पेज तो था शायद पहला पार्ट। नहीं मतलब सत्याग्रह ये वाला इंक्लूड करना था सर बोले। मतलब वर्ड्स अपन डाल सकते हो। हाँ वो थोड़ा जैसे एक दो वर्ड इंक्लूड हो जाता ना तो वो होलिस्टिक लगता। वो मेजर वर्ड, हाँ थोड़े से मेजर वर्ड से तो वो मिसिंग रहते हैं, तो लगता है कि हाँ कुछ मिस हो गया। और डिफरेंस में मतलब ये वायलेंस के अलावा कुछ और है क्या बेसिक? वो ये मोर डिसेंट्रलाइज्ड है, लाइक individualist movements, like and more militant, like Gandhi encouraged like do or die, and it was like application of his ideas of maneuverance. QM के बारे में बता रहा हूँ।
फैक्चुअल डाटा वो पैरेलल गवर्नमेंट के फॉर्म में भी डाल सकते हैं। फिलोसफी बोल रहा है ना, हमें फिलोसफी पे डील करना है, मतलब उसमें अच्छा, क्या अच्छा, हुआ अच्छा। उससे। हाँ अनगांधीयन मूवमेंट यही बोला जाता है ना सर? हाँ गांधीयन बोला जाता है। ठीक है, और कोई पॉइंट है क्या? नहीं है, ठीक है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन 5, comment on स्वराज culmination of स्वदेशी and सर्वोदया। ठीक है, यार गौरव मेरा अच्छा नहीं है इसमें, निशांत का ही पढ़ लो, मेरे से तो बेटर है उनका, मेरा तो बहुत ही बेकार पढ़ा है क्या तूने ये आंसर? हाँ हाँ, निशांत मैंने पढ़ा है वो। अच्छा ठीक है, रीड कर दे यार फिर। हाँ पढ़ दे। हाँ हाँ, तो क्वेश्चन है कमेंट ऑन स्वराज इज द कल्मिनेशन ऑफ स्वदेशी एंड सर्वोदया। तो ड्यूरिंग गांधीयन फेज of Indian freedom struggle, Gandhi introduced concepts like Swaraj, Swadeshi and Sarvodaya to empower masses, to give them sense of self-rule. He believed that there would be no point in getting unless and exploitative, greedy system of economics and social evil of society. Hence, Gandhi designed a trinity to achieve his conception of New India through Sarvodaya, Swaraj and Swadeshi. Sarvodaya means the upliftment of all, not few. As in case of capitalism, he believed in communalism. Communism आना चाहिए था ना, communalism लिख दिया. He believed in communism. For him, good of all individual is continued in good of all. For him, good of all individuals is good of सर्वोदय है all. शायद। Gave concept of trusteeship for implementing Sarvodaya, where the rich are holding wealth on behalf of poor, which doesn't belong to them. The second part of Trinity, Swadeshi, means local economy based on need rather than greed. He opposed mass production, favored production by the masses in manual work to realize one's hard work. Gave the third aspect of Trinity, Swaraj means self-rule, self-government. It implies self-transformation, self-restraint. According to Gandhi, Swaraj worked to bring about a social transformation through decentralization, self-organized structure of governance, that is Panchayat. Gandhi has explained Swaraj in multiple spheres, like in political sphere, Panchayati Raj, in economic sphere, Swadeshi, in social life, constructive programs, to eradicate social evils, etc. Thus, Gandhi's prevailing problems of India and to empower masses to generate new conscious of better India. सबसे पहले तो एक कंक्लूड बहुत ही ज़्यादा मतलब अब्रप्ट कर दिया, खत्म एकदम, नया पॉइंट इंक्लूड करके एकदम एंड कर दिया। तो मेरे को एक्चुअली इस क्वेश्चन में काफ़ी थिंकिंग चाहिए थी, मेरे को भी कुछ नहीं मिला, मेरा भी बहुत ही गंदा है, इवन मेरा इंट्रोडक्शन भी अच्छा नहीं है, बॉडी तो ऐसे ही है, तो इसे बेकार है। कम से कम स्ट्रक्चर तो थोड़ा ठीक है। कोई और पॉइंट्स आपने रेज किए हैं इसमें के अलावा, बता दो। मैंने यार खोलो, कुछ मिलेगा नहीं मेरे में, मैंने तो मतलब मैंने बस पॉइंट ही पॉइंट डाले हैं, मतलब स्वराज का जैसे लिबर्टी फ्रीडम है इंडिया के सेंस में, के बाद ये एक इम्पॉर्टेंट गोल ऑफ मूवमेंट था, मॉडरेट इसको बोलते थे कि रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नमेंट, उनके लिए उतना ही था, एक्सट्रीमिस्ट के लिए एक सेल्फ रूल था। तो मतलब क्या है कि ये इवॉल्विंग कंसेप्ट है,
तो औरोबिंदो घोष को कंप्लीट फ्रीडम बोलते हैं। मतलब मेरे को इसमें क्या है, आपको स्ट्रक्चर कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ एक दो पॉइंट मिलता है तो वो अलग है। जैसे गांधी का स्वराज आता है, वो उपनिषद पर बेस्ड है, औरोबिंदो घोष से इन्फ्लुएंस्ड है। उपनिषद बोलते हैं कि सेल्फ कंट्रोल, स्वराज होता है कंट्रोल ऑन वंस डिजायर। तो गांधी का भी वही है, गांधी ने 4 स्फीयर में इसको बांटा है अपने को, और ब्रॉडली स्वदेशी और सर्वोदया के पिलर्स में इसको डील किया है। जैसे पॉलिटिकल स्फीयर में जाते हैं तो उधर पंचायती राज को स्वराज बोलते हैं, तो जो कि नीड्स और डिमांड पर बेस्ड होता है। और स्वीजरनेस है तो ये कहीं ना कहीं स्वदेशी को वो कर रहा है। राम राज्य होता है ये, और स्टेटलेस सोसाइटी होती है जहाँ पर ह्यूमन डिग्निटी की रेस्पेक्ट की जाती है, तो वो सर्वोदय को इम्प्लीमेंट होता है। सेकेंड इकोनॉमिक स्फीयर जाते हैं जहाँ पर इकोनॉमिक स्वराज गिव लाइफ ऑफ डिग्निटी टू मिलियंस ऑफ पीपल द स्टेट लिविंग इन द स्टेट ऑफ पॉवर्टी, तो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स की फॉर्म में होता है। और इकोनॉमिक पॉलिसी जो है दे शुड बी इम्प्लीमेंटेड बाय स्वदेशी रिसोर्सेज, मतलब जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी है दे शुड नॉट डिपेंड अपॉन द एक्सटर्नल लाइक कॉलोनियल, किसी अदर पावर की रिसोर्स पर डिपेंड नहीं होनी चाहिए, वो खुद सेल्फ सफिशिएंट होनी चाहिए और खुद के ही रिसोर्स को कंट्रीब्यूट करें, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। जैसे खादी क्लोथ डेवलप हो रहे थे कॉटेज इंडस्ट्री में, तो खादी की डिमांड होनी चाहिए और वो कहाँ बननी चाहिए, वो कॉटेज वहीं पे बनने चाहिए, किसी बाहर से नहीं आने चाहिए। जैसे मैनचेस्टर के गुड्स आ रहे थे वो नहीं होना चाहिए। तो दीज पॉलिसी शुड बेस्ड ऑन सर्वोदया एज दे शुड बी इन हार्मनी ऑफ इंडिविजुअल डेवलपमेंट। तो ये कहीं ना कहीं आपके ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ साथ एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन पे भी होना चाहिए, तो वहाँ पर भी एक हार्मनी होनी चाहिए। तो की बात करते हैं इसी इकोनॉमिक पॉलिसी से रिलेटेड, तो सर्वोदया को वहाँ से भी सपोर्ट मिलता है। अगला आता है सोशल स्फीयर, जहाँ पर इंटचेबिलिटी इवल हो गया, और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो गया, वीमेन का सब्जुगेशन हो गया, सबऑर्डन का जो 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 एट्रोसिटीज हो रही है उनके अगेंस्ट वो हो गया। तो इन सब से फाइट कर रहा था, मतलब इन सब से अगेंस्ट जो लड़ने का वो करता है वो स्वराज होता है। और ऑल दीज फीचर्स फुलफिल द थ्योरी ऑफ सर्वोदया। अमर्त्य सेन का एक पॉइंट है जिसमें कि बीइंग प्लस डूइंग, वो इसी से मैच करता है सोशल स्फीयर में। उसके बाद स्वराज कल्चरल लाइंस पर बोला है उन्होंने, तो वो कुछ अरविंदो घोष से इंस्पायर हैं, जहाँ पर उन्होंने बोला है कि इनर फ्रीडम होती है ये। और रविंद्रनाथ टैगोर और तिलक बोलते हैं कि स्वदेशी 1905 में, तो मतलब वो स्वराज को कल्चर की फॉर्म में भी देखते हैं, जो गणेश फेस्टिवल और बात गंगा था। तो बाकी मैंने वही कंक्लूड कर दिया है कि ये सब गांधी का जो स्वराज है कहीं ना कहीं स्वदेशी और सर्वोदया पर ही बेस्ड है। और 73rd और 74th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो गांधी के जो स्वराज का कंसेप्ट है उसको रियलिटी में कन्वर्ट करता है और सेल्फ रूट ग्रास रूट लेवल पर देता है। अच्छा तो लिखा है, अंडर एस्टिमेट कर रहा था। ये हर बार ऐसे ही होता है इसका आंसर, कई बार ये बोलता है कि अब बेकार लिखा और पॉइंट अच्छे लिखे होते हैं इसमें उसमें। इंट्रोडक्शन मेरे को कुछ भी अच्छा नहीं लगा, मेरे को समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ, तो मैंने वहीं से शुरू कर दिया। सही है यार। सही है। किसी को कोई और एडिशन करना है क्या इसमें? बोलो भाई लोग, कोई और एडिशन इसमें? आई थिंक बस इंट्रोडक्शन और एंडिंग में थोड़ा बहुत कोर्स डाल के ही कर सकते हैं, बाकी तो पॉइंट्स तो काफी अच्छे हैं। इंट्रोडक्शन उसका ठीक लग रहा था, मतलब वहाँ पे निशांत का वो बोल रहे थे ना कि ट्रिनिटी और वो सब बैठा रहे थे, वो चीज़ें वर्ड्स अच्छे लग रहे थे उनके। बट ये वाला इंट्रोडक्शन में भी जैसे डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिए हैं, तो वो भी सही लग रहा है ना एक तरह से। फिर बाद में गांधी ओरिएंटेड हो गया आंसर, पहले मॉडरेट से एक्सट्रीम। हाँ मतलब मेरे को यही एक डाउट था उस वाले में, उन्होंने क्या है मतलब एक्चुअली ये स्टेटमेंट में कहीं गांधी मेंशन नहीं है, तो लेकिन उन्होंने सिर्फ गांधी को ही, मतलब उन्होंने ऐसा सोचा कि गांधी की स्टेटमेंट है, गांधी को टैकल किया है। तो एक वो थोड़ा पॉइंट है कि मतलब हमें और भी पॉइंट भी लेने चाहिए मतलब गांधी के अलावा, क्योंकि गांधी ऐसा मेंशन नहीं है उधर।
सही है। ठीक है, अगर कोई और किसी का बस कोई पॉइंट नहीं तो फिर आई थिंक नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यार किसी ने नहीं लिखा इस पे, 7 पे भी किसी ने नहीं लिखा। ये किसके क्वेश्चन ही है? साक्षी, शिवानी, अवनीत, राहुल। अरे यार ये राहुल तो निकाल दिया ना ये। ठीक है यार, एक बार मैसेज डाल दूँ मैं इन लोगों को। लास्ट इज डिफरेंशिएट moderate nationalism from extremist militant nationalism in terms of their objective and means. Flash. मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच का ही पूछ रहा है ऑब्जेक्टिव उसमें। इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल वाज प्रोटेक्टेड बैटल बोल दिया मैंने, मल्टीपल स्ट्रेटजीज, मल्टीपल रेड और मल्टीपल वैरायटी ऑफ एक्टर्स ने लड़ा है। फिर अर्ली नेशनलिस्ट ने जहां कॉन्स्टिट्यूशन मेथड में फोकस किया था उसमें पॉलिटिकल स्ट्रेटजी लिबरलिज्म की ली थी कि मैन रैशनल है तो वो डायलॉग से सुलझा लेगा अपने प्रॉब्लम। तो उसके बाद देख सकते हो ओइंग टू द फैक्ट दैट दे वर वेस्टर्न एजुकेटेड एंड इम्प्रेस्ड बाय मॉडर्न वैल्यू दे कंसीडर ब्रिटिश रूल एज ब्लेसिंग इन डिसगाइज। ठीक है, ये तो पता ही है अपने को। तो एग्जांपल दे दिया मैंने नौरोजी का कि जस्टिस लविंग पीपल बोल रहे हैं राणा डे के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है ब्रिटिश रूल। उन्होंने इंडिया में रूल ऑफ लॉ भी स्टैब्लिश किया है, इसलिए अच्छा है। तो उनकी जनरली उनका फेथ था कि इंडियंस को क्या करना है कि बस ब्रिटिश के सामने अपने डिमांड्स को रीजनेबल वे में ये करना है, प्रेजेंट करना है। ठीक है, और वो एम्प्लॉयड किया था प्रेयर, पिटिशन और प्रोटेस्ट, 3P तो पता है अपने को। तो by doing this moderates felt that in political consciousness of the masses will be developed through education। ठीक है, तो टाइम के साथ साथ हम मासेस में भी पॉलिटिकल एजुकेशन डाल देंगे, अभी वो तैयार नहीं है उस हिसाब से। एंड इंडिया विल बी एबल टू रूल इटसेल्फ, जो स्वराज का जो उनका फॉर्म है अंडर ब्रिटिश सुज़ेरेनिटी, जो नेक्स्ट में दिया होगा। ठीक है, तो ऐसा किया। फिर उसके बाद द मॉडरेट वर हाउएवर क्रिटिसाइज्ड बाय लाल बाल पाल वाला दे दिया, डिससैटिस्फाइड विद द अचीवमेंट ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट, देयर बिलीफ ऑन बिनाइंग ब्रिटिश रूल। वो सिर्फ कुछ नहीं है, बस एक्सप्लॉइटेटिव एंड एलियन इन कैरेक्टर है ब्रिटिश रूल को वो बोल रहे हैं। ठीक है, फॉर इंस्टेंस तिलक ने कॉन्स्टिट्यूशन मेथड को पॉलिटिकल सुसाइड कंसीडर किया था। हम देख सकते हैं कि मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट उनका नाम क्लासिफाई तो किया जाता है, बट रिलेटिव इन नेचर ही हम देख सकते हैं। वो चेंज होता है मेथड और डिमांड, टाइम और कंडीशन के हिसाब से उन लोगों ने अपने आप को ये किया ढाला है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ गोल्स द टू वर क्वाइट सिमिलर टू ऑब्टेन स्वराज। ठीक है, एक्सेप्ट गौरबिंदु, उसके लिए तो पूरा का पूरा ही चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने दोनों ने ही डोमिनेंट स्टेटस और सेल्फ रूल के बारे में बोला गया है। ठीक है, जो मेन डिफरेंस आता है उनकी स्ट्रेटेजी में आता है। एक्सट्रीमिस्ट फेवर करते हैं डायरेक्ट एक्शन, जो पहले वाले सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में थे, ये डायरेक्ट एक्शन जिसमें पैसिव रेजिस्टेंस, बॉयकॉट और स्वदेशी वगैरह। तिलक रिजेक्ट करता है मेथड ऑफ पिटिशन, स्वराज इज माय बर्थ राइट बोलता है, गिफ्ट नहीं है, एक मेरा जेन्युइन क्लेम है बोलता है वो इंडियंस का ब्रिटिश केस में, कि वो स्वराज उनका लेजिटिमेट क्लेम। एक्सट्रीमिस्ट लेस Swadeshi movement, which was quite successful to bring masses into the political struggle. They could preserve the Swadeshi movement का दे दिया कि वो थोड़ा सक्सेसफुल था। ब्रिटिश ऑन देयर पार्ट एम्प्लॉयड द स्ट्रेटजी ऑफ कैरेट एंड स्टिक वाला डाल दिया मॉडरेट को डिवाइड करने के लिए, लेकिन अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट दैट अंडर एन एलियन रूल ओनली अ यूनिफाइड फ्रंट कुड बी लेजिटिमेट एंड इफेक्टिव अगेंस्ट कोलोनिज्म, दे reunited during Lucknow session 1960. So whether it was moderates or extremists, they suffered with many limitations. But one can't disagree with the fact that they were pioneers of nationalism in India. They built the groundwork for Gandhian movement, mass movement, which acquired a truly national character. Time कर दिया। यार वैसे इस पे मिलिटेंट नेशनलिज्म पे भी लिखा था ना? क्वेश्चन में वो मिलिटेंट नेशनलिज्म के बारे में भी बात कर रहा था ना? मिलिटेंट मतलब ही तो एक्सट्रीमिस्ट है। नहीं, मिलिटेंट का मतलब वो भी हो गया ना, डायरेक्ट अटैक वाले जो रिवॉल्यूशनरी भगत सिंह आएगा ना। रिवॉल्यूशनरी का नहीं है, वो एक्सट्रीमिस्ट का ही है। मिलिटेंट उनको बोला जाता है, रिवॉल्यूशनरी टेररिस्ट वाला। रिवॉल्यूशनरी
मिलिटेंट या एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म सेम है। वो अलग अच्छा सेम है, ओके ओके ठीक है। हाँ होगा। सही है। कोई बताओ फिर और क्या एडिशन होना चाहिए इसमें? वो एक किसी का स्टेटमेंट है ना कि रैडिक क्या है, एक्सट्रीमिस्ट ऑफ टुडे विल बिकम मॉडरेट्स ऑफ टुमारो, ये कहीं डाल सकते हैं क्या? तिलक का ही है ना ये स्टेटमेंट तो आई थिंक। इसका है याद नहीं मुझे। हाँ शायद उन्होंने बोला था एंड में उनके। ये पॉइंट डाला है इन्होंने कि रिलीजियस और कल्चरल डिफरेंस भी था, मतलब एक्सट्रीमिस्ट वो भी एस्पेक्ट यूज करते थे स्ट्रगल में। करेक्ट। वो इन्फ्लुएंस का सही कह रहे हैं कि इन्फ्लुएंस का डाल सकते हैं कि दे लिबरल ट्रेडिशन और प्रोग्रेसिव ट्रेडिशन से इन्फ्लुएंस थे। ये कौन अपने पहले वाले अर्ली नेशनलिस्ट, और जो दूसरे वाले थे देवर इन्फ्लुएंस्ड बाय विवेकानंद का जो नेशनलिज्म का आइडिया था, बंकिम चंद्र चैटर्जी एंड औरोबिंदो स्पिरिचुअल कल्चरल नेशनलिज्म। तो वैसे लिख सकते हैं थोड़ा सा इन्फ्लुएंस। वहाँ पे जेएस मिल्स और ये सब लॉक वगैरह जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वगैरह पे विश्वास रखते हैं, इन सबसे अर्ली नेशनलिस्ट जो थे वो इन्फ्लुएंस थे। हाँ और सेकंड वाले का हम हेगल यूज कर सकते हैं कि वो लेते हैं ऑर्गेनिक व्यू लेते स्टेट का वो लोग। एक लिबरल वर्सेस प्रैग्मेटिज्म आ जाएगा, मतलब वो लिबरल व्यू में बात करते थे, ये प्रैग्मेटिक में बात करते कि अभी हमारे पास क्या ऑप्शन है, जैसे पैसिव रेजिस्टेंस हो गया, तो वो भी एक डिफरेंस हो जाएगा। या रियलिस्ट बोल सकते हैं, जो लेटर वाले थे रियलिस्ट थे थोड़ा सा इसको सेंस में। हाँ मैंने वो ग्रुप पे डाल दिए हैं कुछ 9-10 पॉइंट्स हैं डिफरेंसेस के, तो उसमें मतलब मोस्टली कवर हो जाएगा। बाकी भी पॉइंट्स अगर कुछ बच गया तो। सही है, अब तो क्या ढूंढना क्या है। सही है, ठीक है फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। समीप भाई कुछ मेरे वाले पे क्वेश्चन नंबर 5 कुछ मिले तो उधर भी कुछ ऐड कर देना। भाई तेरा ही क्वेश्चन सबसे ट्रिकी है इसमें पूरे में। हाँ यार वो बहुत ही वो लगा देखता हूँ मैं, देख लेना बट किसी के पास। वो एक्चुअली वो प्रॉपर एप्लीकेशन वाला है, उसमें स्वराज भी है, सर्वोदय भी है, सत्याग्रह भी है, मतलब स्वदेशी भी है। तो मतलब उसमें वही है कि तीनों का मीनिंग पता होना चाहिए एंड देन कॉम्बिनेट करके कैसे लिखना है। इट बॉइल्स डाउन टू अंडरस्टैंडिंग ओनली। यहाँ तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसके नोट्स थे तो वो मैंने शेयर कर दिए। मुझे कुछ मिलेगा तो डाल दूंगा श्योर। हाँ हाँ ठीक है यार, वो बाकी जो 2 क्वेश्चन है ना उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो 6 was examine the efficacy of सत्याग्रह as a moral resistance to the colonial rule। ठीक है, कैसे डील करोगे यार इसके? हेलो शायद वो स्टार्ट वही कर लेंगे बिपिन चंद्रा वाले से कि वही मास मूवमेंट है, इसमें लेट किया है वन ऑफ द सक्सेसफुल मास मूवमेंट वाला, मास साइकोलॉजी स्ट्रेटेजीज और वो जो डाल देंगे अपन। फिर उसके बिलीव्स और वो सब दिखा देंगे अपन, इंस्पायर्ड का ऐसे वो रस्किन और वो सब जो था, ठीक है। और उसने फिर डेवलप किया अपना जो मेथड्स है, और ये है थ्रू प्रैक्टिस साउथ अफ्रीका, और उसमें वो सब दे सकते हैं अपन। सत्याग्रह का जो स्टूड फॉर था वो अपना नॉन वायलेंस के ऊपर था, अहिंसा से ही वो एक लॉजिकल कंक्लूजन था। सत्याग्रह को एक तरह का व्हीकल के तौर पे अपन देख सकते हैं नॉन वायलेंस की, ठीक है। ये डायरेक्ट वही है अपना कि यहाँ पे वो
यहाँ से फिर मतलब वहाँ पे था, हाँ मीन्स एंड एंड भी डाल ही सकते हैं अपन। कहाँ चालू किया था मैं, सत्याग्रह वाला जो है सिनर और सिन वाला जो था पॉइंट, वो वाला डाल सकते हैं शायद अपन, कि खुद के ऊपर मतलब सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर जोर देने की मतलब बात करता था वो। और यू शुड लव मतलब लव द सिनर बट हेट द सिन, ऐसा कुछ वाला डाल सकते हैं अपन। मीन्स एंड वाले से जोड़ सकते हैं फिर अपन, कि क्योंकि हमारा मतलब एंड जस्टिफाई होने के लिए हमको मीन्स भी जस्टिफाई होना चाहिए, कि हिंद स्वराज वाला डाल देंगे अपन, कि वो बबुल और रोजेस वाला जो था। ठीक है, इसमें डायलेक्टिक्स वाला कंसेप्ट डाल सकते हैं क्या? उसने बोला था कि जो सत्याग्रह है उसका मॉरल सुपीरियरिटी है और वो गुड है, एंड इट इज फाइटिंग अगेंस्ट द एविल, जो कि ब्रिटिश रूल है यहाँ पर। और उसका अल्टीमेट जो सिंथेसिस निकलेगा वो विन ऑफ वो निकलेगा। जैसे हम आई थिंक डायलेक्टिक्स के अंदर 3 प्रिंसिपल भी थे ना, नेगेशन ऑफ नेगेशन, तो उस प्रिंसिपल का यूज करके वो जस्टिफाई करता है कि सत्याग्रह जो है दैट इज मतलब एक इफेक्टिव टूल है अगेंस्ट दिस कॉलोनियल रूल। तो वो भी दे सकते हैं कि कंडीशंस के हिसाब से भी उसने डाला था, मतलब डायरेक्ट तो मतलब जो ये डायरेक्ट एक्शन जो रिवॉल्यूशनरी ले रहे थे वो तो पॉसिबल भी नहीं था, वो मिडिल पाथ भी नहीं। वो थोड़ा सा वो मतलब मैंने नोट्स में से पढ़ा था कि थ्योरो का वो जो आइडिया था ना पैसिव रेजिस्टेंस का, तो उससे थोड़ा सा ये ऊपर था, क्योंकि पैसिव रेजिस्टेंस वो थ्योरो के आइडिया में ये था कि वो पैसिव रेजिस्टेंस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि उनका जो डायरेक्ट मेथड है वो काम नहीं करेगा, तो उनके पास वो एज अ चॉइस है वो। बट जो सत्याग्रह है वो एज अ फेथ यूज कर रहे हैं, कि मतलब वो उसको कोई चॉइस की तरह नहीं कर रहे, एज अ फेथ करे कि हाँ यही चीज इफेक्टिव है, वो एज ए अपॉर्चुनिटी उसको नहीं यूज कर रहे। वो मतलब नोट्स में से शायद ऐसा ही लिखवाया था। तो वो वाला भी है कि वो रिलीजियस कैरेक्टर उसने किया था, गुड और ईवर वाला, मतलब क्योंकि हमारा साइड सही है, हमारे मीन्स सही है, तो जीतना तो हमें है ही, ऐसा कुछ भी है। तो वो वाला भी डाल दिया था उसने, शायद वो रावण और रामायण से जोड़ा था उसने उसको। मतलब वो डायलेक्टिक्स डाल के हम ईगल से कनेक्ट कर सकते हैं, उसका थोड़ा सा आइडियलिज्म। हाँ ऐसे बोल सकते हैं, मतलब एक पासिंग रेफरेंस देके बोल सकते हैं शायद वो, डायलेक्टिक्स से सिमिलर है उसके व्यूज ऐसा। इसको क्या है, वॉर ऑफ पोजीशन बोल सकते हैं क्या इसको? मॉरल रेजिस्टेंस से बोला था उसने। हाँ करेक्ट बोल सकते हैं ना। इसमें एग्जांपल भी दे सकते हैं कि जब वो सीडीएम लॉन्च करता है तो सीडीएम नहीं सॉरी, वो नॉन कॉपरेशन, सॉरी सीडीएम ही करता है, हाँ सीडीएम ही करता है। तो उसके अंदर वो जब लॉन्च कर देता तो फिर उनको समझ में नहीं आता है कि मतलब अगर उस पर अटैक करेंगे गांधी के ऊपर सीधा, तो वो एकदम ऐसा हो जाएगा कि वो उनका जो बेनेवोलेंट डिस्पोटिज्म है उसका मिथ खत्म हो जाएगा, और अगर नहीं करता तो उसकी हेजेमनी खत्म हो जाएगी। जो डैम इफ यू डोंट, हाँ वो वाला पॉइंट एक्चुअली वही वो वैसे भी हमको मतलब ऐड तो कर सीडीएम वाला पॉइंट हमें ऐड करना है, क्योंकि हमको अगर एफिकेसी दिखानी है सत्याग्रह एज अ मॉरल रेजिस्टेंस, तो उसमें चीफ ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ही था जिसमें ये हेजिमनी वाला पॉइंट एक बार रिपीट करियो संजय। पलाश बता दे वो एक बार पॉइंट। मतलब डैम इफ यू डू वाला नहीं, अगर मतलब ज्यादा फोर्स यूज किया तो रिप्रेशन हो जाएगा, और बेनेवोलेंट डिस्पोटिज्म का मतलब ही है कि वो रूल ऑफ लॉ के ऊपर चल रहा है, तो उनकी लेजिटिमेसी जो हेजिमनी उनकी बनाई हुई है वो खत्म हो जाएगी ना अगर रिप्रेशन यूज करते हो, क्योंकि वो सिविलाइजेशन फॉर्म का मतलब यही है कि आप डायलॉग से करोगे और ये सब करोगे, तो वो उसके प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट हो जाता है। इसलिए बेनेवोलेंट डिस्पोटिज्म को ये करेगा, नेगेट करेगा उनकी पॉलिसी जो करेंगे। तो फिर कंक्लूड क्रिटिसिज्म। अच्छा हाँ क्रिटिसिज्म भी था, वो तिलक का था ना, वो जिसने बोला था कि वो इम्प्रैक्टिकल है, अगर वायलेंट ऑपरेशन हमसे हो रहा है ये सब तो सत्याग्रह। जैसे ये भी असर्ट करते हैं ना कि सत्याग्रह या नॉन वायलेंट मेथड्स के थ्रू ही इंडिपेंडेंस मिला करके, बट दैट इज आल्सो क्वेश्चन कि अल्टीमेटली इट वाज नॉट बिकॉज ऑफ गांधीज मेजर्स ब्रिटिश
इंपीरियलिज्म खुद ही कोलैप्स हो गया आफ्टर कोल्ड वॉर 2, और जो वो है ना आईएनए रिवोल्ट वगैरह हुआ था, दैट वाज मोर द रीजन ऑफ कॉलोनियल रूल एंडिंग एंड नॉट सत्याग्रह और गांधीज मेथड्स। हाँ वो भी सही पॉइंट है एक्चुअली, वो प्रैक्टिकल है देखा जाए तो। बट वो थोड़ा ओवर पावर नहीं कर जाएगा पूरे आंसर को? हमने तो मतलब इंग्रेन करके रखा है हमारे माइंड्स में। नहीं, उसमें वो तक है, हम नहीं बोल रहे हैं ऐसा, लाइक स्कॉलर्स हैव सेड दैट आईएनए रिवोल्ट वाज द कोर रीजन ऑफ एंडिंग ऑफ द कॉलोनियल रूल एंड नॉट गांधी सत्याग्रह। तो क्रिटिसिज्म उसका जनरल स्कॉलरली क्रिटिसिज्म ही है वो, एब्सोल्युटली तो किसी को नहीं पता है। सही भी बोला है, इसने बोला है। किसने बोला वैसे? यार ये तो नहीं पता, बट मतलब ऐसे बोल सकते हैं, तो पढ़ा है, स्कॉलर्स आप ऐसे करके लिख सकते। सही है वो। या फिर गुनार मारेडल को यूज कर लेगा इसमें, कि उसने क्रिटिसाइज किया कि इस सत्याग्रह की वजह से लॉलेसनेस आ गई इंडियंस में। अंबेडकर ने भी शायद यही बोला था, सत्याग्रह में एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन वाला था। हाँ, ग्रामर ऑफ एनार्की में उसने ये बोला था कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को अडॉप्ट करो, और ये बट वो फिर कंटेक्स्ट अलग हो जाएगा ना, उसने फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद वो चीज बोली है। ये यहाँ पे स्ट्रगल एक फॉरेन फोर्स के अगेंस्ट है। देखा जाए तो मॉरल रेजिस्टेंस बोला ना, तो वो वॉर ऑफ पोजीशन वाला ही है उनका, बेनोवलेंट डिस्पोटिज्म। और इसका ये जो सत्याग्रह वाला था कि नहीं, वो एलियन कैरेक्टर और एक्सप्लॉइटेटिव इन नेचर है, ये उसने एस्टैब्लिश करके मतलब करने की कोशिश की, शायद उसी लाइंस में है ये। वही मॉरल जो पलाश ने भी बोला, मेरे ख्याल से ज्यादा उसी पे लिखना है, मॉरल रेजिस्टेंस, आई फॉर एन आई वाला, एंड मीन्स एंड एंड्स। ठीक है, तो क्रिटिसिज्म में एक तो समीप ने जो पॉइंट बोला था कि बेसिकली वो मतलब आज इंडिपेंडेंस इंडिया को सत्याग्रह से नहीं मिला, उनका वो जो इंपीरियलिस्टिक जो वो था स्ट्रेच था, वो अपने आप ही कोलैप्स हो गया, तो उस चक्कर में इंडिपेंडेंस मिला है। तो कोई अगर स्कॉलरली व्यू पता हो इस पे, किसी ने बोला तो प्लीज ऐड ऑन कर देना उस पे। बाकी कंक्लूजन में तो अपन ये, हाँ कंक्लूजन में आई थिंक नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग का डाल सकते हैं कि वो भी इससे इंस्पायर्ड हुए थे, और फिर फर्दर उन्होंने मतलब अपने एक वेरिएंट ही लॉन्च किया था सत्याग्रह के वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अगर कुछ ये बोल सकते हैं कि उनके जो मेथड्स हैं वो उसका ओवरशूट ही है उसके प्रिंसिपल्स का, मतलब वो रिफ्लेक्टिव ऑफ इट्स प्रिंसिपल ही है। तो जो सत्याग्रह जो मेथड भी थी वो भी एक मॉरल रेजिस्टेंस लिए भी है, और वो उनकी जो आइडियोलॉजी है बेनोवलेंट डिस्पोटिज्म, वो उसको डायरेक्ट चैलेंज करता है। मेथड्स और प्रिंसिपल्स में मतलब कोई सेग्रीगेशन नहीं किया है उन्होंने, ऐसा कुछ। ठीक है, कोई और कंक्लूजन बोलना चाहता है क्या? कुछ और किसी के पास पॉइंट हो? एक वो था बुक थी एक एंड्स एंड मीन्स करके, वो एल्डस हक्सली की थी, उसने भी इसको वेस्ट से कनेक्ट किया था कि सत्याग्रह में टेक रूट्स इन द वेस्ट बिकॉज इट प्रोवाइड्स द मासेस विद देयर ओनली प्रैक्टिसेबल फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल एक्ट। अरे वो एक बार इसमें डाल देगा क्या कमेंट्स में? यहाँ पे डाल। और ये अभी पलाश क्या कह रहा था, डिफरेंस बिटवीन एक्शंस एंड मेथड्स का कुछ कह रहा था ना? मेरा कनेक्शन का बहुत वीक जा रहा था, तो आई कुड नॉट लिसन प्रॉपर्ली। पलाश का अभी जस्ट मेरे बोलने से पहले एक पॉइंट था। क्या पॉइंट है यार? उन्होंने ही बोला था कि देयर इज नो डिफरेंस इन द मेथड्स एंड प्रिंसिपल्स। ठीक है, ऑलराइट, ये डिस्कस हो गया। लास्ट डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। Comment on the success of Mahatma Gandhi lay in transforming both political and non-political movement into a unified national movement. Okay. ठीक है, तो इसको कैसे? पॉलिटिकल में तो हमारे पास बहुत सारे हैं, नॉन पॉलिटिकल में भी बहुत सारे हैं, जैसा स्वदेशी हो गया,
और क्या नाम बोलते हैं, इकोनॉमिक भी हो सकते हैं, बाकी ट्रस्टीशिप वगैरह वो हाँ अनटचेबिलिटी पे था ना जब वो कंस्ट्रक्टिव हाँ कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम। कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, तो उसमें केवल नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट ही था, टेम्पल एंट्रीज और वो सब। पेशेंट वगैरह वर्कर्स वाला भी देख सकते हैं, वुमेन क्या का पेशेंट मूवमेंट्स भी, बरदोली सत्याग्रह, और वो भी उसके इसमें लिए था पटेल और उसने, हाँ गर्ग के करेक्ट। इसमें देख सकते हो पेशेंट और वो वर्कर्स का। वुमेन के राइट्स भी देख सकते हैं क्या अपन इसमें, वुमेन को इंक्लूड किया था उन्होंने, एक तरह का नॉन पॉलिटिकल नहीं, मतलब सोशल एक इवल को एड्रेस तो कर लिया था एक तरीके से। सोशो कल्चरल में आ जाएगा। दलित्स का पॉइंट डाल सकते हैं क्या, जो रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम का सोशल हाँ वो बोल दिया क्या? डिस्कस किया था कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम में, उन्होंने वही किया था ना। या राइट राइट। ठीक तो है शुरुआत तो तो उसका वही होगा ना जो हम बोल रहे थे, वो पार्शियल वाला जो कोर्स था, जो सब लोगों में पार्शियली होता है और कुछ लोगों में फुल्ली होता है, वो वाले कोर्स हम शुरू कर सकते हैं। कर सकते हैं। तो अपन मतलब पॉलिटिकल पॉइंट्स तो रेज ही कर सकते हैं कि अलग अलग सत्याग्रह वाला था, और फिर उसके अंदर उन्होंने एक मास मूवमेंट लॉन्च किया। अब तक कांग्रेस का जो स्प्रेड था वो बहुत लिमिटेड था। दे ओपनड दिस पॉलिटिकल स्ट्रगल टू द जनरल पब्लिक, टू द मासेस, और उसके बाद एक अपना ही स्टाइल, अपना ही ब्रांड ऑफ नेशनल मूवमेंट उन्होंने लॉन्च किया। तो उसके अंदर फिर अपन नॉन पॉलिटिकल में फिर अलग अलग पॉइंट्स रेज कर देंगे, जैसा दलित वाला पॉइंट हो गया, फेमिनिज्म, सॉरी फेमिनिज्म नहीं, वुमेन के लिए कोई स्पेसिफिक बता सकता है कुछ और एडिशन इन्होंने किया हो उसमें? वुमेन स्पेसिफिक कोई पॉइंट है क्या? और ऐसा बोल सकते हैं क्या कि नॉन वायलेंट मेथड्स कुड म्हणजे they were a reason that women could be included, also could be included. हम्म। आप बोल तो सकते हैं, बट वही है ना, वो तो फिर थोड़ा अपना ड्रॉ कर रहे हैं अपन कंक्लूजन। एज सच कोई गांधी का अगर कोई मिल जाए तो वो बेटर रहेगा, अगर नहीं मिलता तो फिर आई थिंक ये कर सकते हैं अपन। सर वर्कर और लेबर, ये था फैक्ट्रीज वाले में ट्रस्टीशिप और वो सब जो डाला है वो शायद हो सकता है। हाँ वो तो डाल सकते हैं। ऐसे एक बार वुमेन का बता दो यार, वुमेन पे आई थिंक वैसे भी इंडिपेंडेंट भी क्वेश्चन आ सकता है। मैंने ये कहीं पढ़ा था, अभी स्कॉलर वगैरह याद नहीं है, बट ऐसे पासिंग डिफरेंस में कि उनके जो मेथड्स थे कि फेमिनिन मतलब कैरेक्टर था, नॉन वायलेंस है, पिकेटिंग ऑफ शॉप्स वगैरह, ऐसे फायर वगैरह, मतलब रिवॉल्यूशनरी या फिर एक्सट्रीमिस्ट का जो था वैसे नहीं था, जिसमें विमेन ज्यादातर इंक्लूड नहीं हो सकती उस टाइम की स्पेशली। अच्छा हाँ। ऐसा कुछ आर्टिकल पढ़ा था। हाँ फिर तो सही है, डाल सकते हैं उसमें। हाँ और फिर आई थिंक वही क्रेडिट दे देंगे, वुमेन का पार्टिसिपेशन ही हम गांधी के आने के बाद ही देखते हैं, तो कंट्रीब्यूशन उसी को जाता है उसका। हिंदू मुस्लिम यूनिटी आ सकता है, यूनिफाइड खिलाफत मूवमेंट कह सकते हैं। खिलाफत तक, हाँ। ये तो नॉन पॉलिटिकल में आएगा ना? हाँ नॉन पॉलिटिकल में। तो स्वराज जो था वो, मतलब उसमें तो दोनों ही आ जाते हैं, पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल। तो आई थिंक उससे एंड कर सकते हैं। हाँ वो जो ऊपर क्वेश्चन था ना, या स्वराज वाला, स्वराज पे सर्वोदय।
ठीक है, और कोई पॉइंट है क्या इसमें? फिलहाल कुछ आएगा किताब। नॉन वायलेंट इंक्लूजन ऑफ वुमेन। और कंक्लूजन में जो पिछला क्वेश्चन का स्टेटमेंट था ना, कौन सा था यार वो? 5वां। हाँ 5वां, को यूज कर सकते हैं कंक्लूजन के लिए। ठीक है, और कोई पॉइंट? ठीक है, तो फिर आज का डन करते हैं यहाँ पे। आज 8 ही क्वेश्चन थे, कल 7 क्वेश्चन है इसके ऊपर। तो किसी के पास कोई और क्वेश्चन हो ना इसको लेके, इंडियन उसको नेशनलिज्म को लेके, नेशनल मूवमेंट को लेके, तो डाल देना, क्योंकि आई थिंक कल भी थोड़ा जल्दी हो जाएगा वो चीज़। तो ये हेडर है ना, इसी के अंदर डाल देना, तो अगर आपके पास क्वेश्चन हो तो इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, देन फाइंड अप करते हैं ना। ओके ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू, थैंक यू, बाय। थैंक यू रिशाले, आपने लिख दिया यार, आज बहुत हेल्प हो गई। अरे ऐसे कोई बात नहीं। चलो।